ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਟੀਵੀ ਸਕੂਲ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਜ ਸ਼ੇਪਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ये जो मीडियम बने होंगे ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम होंगे, मतलब कोई ना कोई मटीरियल का बने होंगे। फॉर एग्जांपल ग्लास हो गया, कुछ भी हो गया, उस चीज़ का बने होंगे। ठीक है, ये दो रिफ्रैक्टिंग फेसिस है। ये देखो दो रिफ्रैक्टिंग फेसिस है जो साइड से होंगे। इस फॉर्म तुम प्रैक्टिकल करोगे वो दो फेसिस तुहानू दिखणगे। लाइट इधरों पास करती है, ये बैक साइड तो निकलती होंगी है। ठीक है, तो एक एज होंगे रिफ्रैक्टिंग एज, ये रिफ्रैक्टिंग एज दो फेसिस के नाल अटैच एक एज होंगे। ਤੇ ਦੋ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ, ਇਹ ਦੋ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਵੈਜ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਜ ਸ਼ੇਪ ਮੀਨਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਵੀ ਸ਼ੇਪ, ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਜ ਸ਼ੇਪ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਸ਼ੇਪ, ਵੈਜ ਤਿੱਖੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਜ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਮੀਡੀਅਮ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਜ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਮੀਡੀਅਮ ਬਾਉਂਡਡ ਬਾਈ ਟੂ ਪਲੇਨ ਫੇਸਿਸ, ਬਾਉਂਡਡ ਬਾਈ ਟੂ ਪਲੇਨ faces inclined to each other at a certain angle, inclined to each other, that is called angle of prism। ਇਹ ਸੀਗੀ ਜਨਰਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਟੂ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੋ ਪਿੰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਟਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਦੋ ਪਿੰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਛੇਵੇਂ ਦਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਇਹ ਪਿਨ P1 ਤੇ ਪਿਨ P2 ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ P1 ਡੈਸ਼ ਤੇ P2 ਡੈਸ਼ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। करेक्ट कर दिए ते ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟਿਪ ਤੇ ਇਹਦੀ ਟਿਪ ਇੱਕ ਟਿਪ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਿਪ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਿਪ ਟੂ ਟਿਪ। ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਨੀਚੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਦਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ, ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ इंसीडेंट रे, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਮਰਜੈਂਟ ਰੇ। ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਠੀਕ, ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, क्लियर है? सब तो पहले दो पिंस इस साइड लगाई, दूसरी साइड तो देखिए सानू वो पिंस की इमेज दिखनी शुरू हो गई। फिर ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਿੰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਰਜੈਂਟ ਰੇ ਰੱਖਤਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਮੀਨਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ। ਠੀਕ, ਨਾਰਮਲ ਮੀਨਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਰਫੇਸ। ਠੀਕ, ਇਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਾਰਮਲ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਆ ਗਿਆ N1, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ N2। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ the angle formed between the incident ray and the normal ray, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ this is called normal।
ठीक। इंसीडेंट रे ते नॉर्मल दे जिहड़ा एंगल बनदा है इन्हों आपां कहंदे एंगल ऑफ इंसीडेंस। क्लियर? द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसीडेंट रे एंड द नॉर्मल रे दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसीडेंस। हुण देखो ये जिहड़ी रे है दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे ते नॉर्मल दे विच, रिफ्रैक्टेड रे ते नॉर्मल दे विच इन्हों नाम दिता आपां R1। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये क्या गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगेन दिस इज R2। नॉर्मल ते रिफ्रैक्टेड रे जा रही है इत्थे भी, ठीक है। दूसरी साइड तो नॉर्मल ड्रॉ किया। दिस इज अगेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1। ये जिहड़ा बन रहा है इन्हों पर कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक। एंगल ऑफ इमरजेंस। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। ये R1 ते R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 ते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2, ठीक है। हुण देखो ते ये जिहड़ा बनदा हुंदा इत्थे एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर? दो रिफ्रैक्टिंग फेसिस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर है? ये साडा सीगा बेसिक डायग्राम। हुण ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू अ rectangular रहने दो, थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म की शेप कोई भी हो सकती है, आइसोसेलेस भी हो सकती है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, किस मर्जी फॉर्म च बना सकते हैं, ठीक है। हम आप वेज शेप वाली लेनी है। फॉर एग्जांपल ये अपना डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। इस फॉर्म च हुणी मैं तुहानूं एक्सप्लेन किया है, ठीक। इस फॉर्म च रे आई, ठीक। हुण देखो इस तो बाद ये आ गया अपना नॉर्मल। इधरों दी सॉरी ये नहीं, ये आएगा नॉर्मल, इधरों दी ये आ गया नॉर्मल, ठीक। दिस रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड इमरजेंस ई। ये अपना आ गया R1 ते अपना आ गया R2। हुण देखो ये जिहड़ी टर्म है ये R1 ते ये R2 इन्हों आपां कहता है एंगल ऑफ प्रिज्म ए, ठीक। इधरों दी अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेके जाऊँगा इस फॉर्म च, तो इधरों दी भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेके जाऊँगा, ठीक। ये जिहड़ा एंगल बनेगा ना इन्हों आपां कहांगे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ठीक। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। क्लियर है? ये एंगल ऑफ प्रिज्म स्ट्रेट लाइन जा रही है। अगर ये प्रिज्म ना होंदा इन्हें बिल्कुल सीधा जाना सी। अगर इधरली साइड भी प्रिज्म ना होंदा ये जिहड़ी रे है इधरों दी आंदी लग रही है, एदी ते एदी रे दे विच जिहड़ा एंगल बनदा उहनूं आपां कहंदे एंगल ऑफ डेविएशन। की कहंदे गया? एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब कितना डेविएट कर रहा है वो एंगल। हुण आपां ये डेविएशन दी ही डेरिवेशन कर रहे हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म ते डेविएशन दा रिलेशन पुछदे हुंदे आ। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म, डेविएशन, इंसीडेंट एंड इमरजेंस एंगल, यही पूछते होंगे। वही आप हम प्रूफ करने का। फिर तो अगर ए रे ए प्रिज्म ना होंदा बिल्कुल स्ट्रेट जांदी ते इत्थे एक एंगल बनदा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ देखो नॉर्मल है की है, इधरों दी लेके इस पॉइंट तो लेके ये नॉर्मल रे तक ये 90 डिग्री है। सिमिलरली इस पॉइंट तो लेके ये वाला 90 डिग्री है, ठीक।
थोड़ा मैं और एक्सप्लेन कर देना, थोड़ा बड़ा करके, सिर्फ वो वाला पॉइंट। ठीक, ये साडा की है नॉर्मल इस फॉर्म च। ठीक, कोई भी रे इदा गई सी, ठीक है, फिर उस तो स्ट्रेट टकराने तो बाद इस फॉर्म च। ठीक, ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ एंगल ਜਿਹੜੇ ਲਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ एंगल ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, दिस इज कॉल्ड R1, ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ I। ठीक, ਹੁਣ देखो ਇਹ ਆ ਗਿਆ अपना R1 ਤੇ ਇਹ परपेंडिकुलर है, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल, ਇਹ नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि इधरों दी A नॉर्मल है, ठीक है, इधरों दी A नॉर्मल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री। क्लियर। सिमिलरली अगर इधरों दी नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल R2 एंगल। क्लियर, इस साइड से ड्रॉ कर लेना ताकि तुहानू ये बाद विच कंफ्यूजन ना होए। ठीक है, पता चल गई ना ये टर्म। हुण देखो अगर ए साडा ए वाला एंगल ए आई है, तो ए पूरा एंगल भी की होगा, ए भी आई होएगा। ठीक है, चलो बाद डिस्कस करते हैं। सब तो पहले देखो, हुण देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इनू नाम देता आपां एंगल ए नू ए ही लेट कर लेंगे, ए पी ए क्यू, तीनों अपन नाम देता आर, इनू देता एस। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटर विच ए वाले विच दिस 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 इस फॉर्म च, दिस ए टू पी, ए टू पी, पी टू क्यू, क्यू टू आर ते आर टू ए, आर टू ए। ये एंगल कितना है ए कितना है साडा 90 डिग्री, ते भी कितना है 90 डिग्री, ते वाला कितना है, इनू नाम देता पा एंगल क्यू नू क्यू एंगल नाम देता है। ठीक है, हुण देखो एंगल ऑफ प्रिज्म ए प्लस एंगल, होल एंगल इज P प्लस होल एंगल R प्लस एंगल Q इक्वल्स टू, मतलब A P Q R विच इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, सम ऑफ ऑल द एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है, इस सारे का सम कितना होगा 360 डिग्री। हुण देखो एंगल A प्लस एंगल P कितना है 90 डिग्री, एंगल आर भी कितना गया, दैट इज अगेन 90 डिग्री, प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर। हुण देखो एंगल ए प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, 90 प्लस 90 180, ए उस साइड जाके माइनस हो गया, मीन्स एंगल ऑफ प्रिज्म ए प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेट दिस एज इक्वेशन नंबर 1। इन्हों पर इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। क्लियर है। हुण देखो, हुण दूसरा देखो इस साइड तो, ये देखो ये एक ट्राइंगल है पी आर क्यू, इन ट्राइंगल पी आर क्यू। ठीक, हुण दूसरी साइड तो ले लेंगे हैं, इन ट्राइंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू दे भी देखो ए वाला इस फॉर्म च, पी आर क्यू, ए एंगल की है R1, ए वाला एंगल R2। क्लियर, ए एंगल क्यू नू क्यू ही लेट कर लिया, एंगल ऑफ R1 प्लस एंगल ऑफ R2 प्लस एंगल क्यू, इस सारे का सारा के इक्वल है 180 डिग्री। क्लियर। ये देखो इस इक्वेशन नू तो इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों जब आप इक्वेट करांगे a प्लस क्यू 180 डिग्री दे है, इत्थे R1 प्लस R2 प्लस क्यू इक्वल टू 180 डिग्री दे। ਇਹਦਾ मतलब अगर इत्थे a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ R1 प्लस R2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, क्योंकि बाकी सारी टर्म्स q 180 डिग्री 180 डिग्री, मतलब ਆਪਾਂ जब ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू सम ऑफ R1 एंड R2 आ रही है। क्लियर है, ये दोनों इक्वेशन तो क्लियर हो रही है टर्म। फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R1
प्लस R2। ठीक है, इक्वेट दिस एज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। हुन देखो, हुन अगला स्टेप देखो, हुने देखो ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਸਮ ਆਫ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸਿਸ ਵਾਲੇ ਟਰਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਐਂਗਲ A, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਐਂਗਲ P, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਐਂਗਲ R, ਇਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਲ a और कैपिटल A, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ इधरों देखो, इधरों ना एक रे जा रही है इस फॉर्म इस फॉर्म च एक रे जा रही है, तो इधरों दी इस फॉर्म च एक रे जा रही है, इतने बन रहा है डेविएशन एंगल डेल्टा। ठीक, हुण ध्यान नाल देखो ए वाली रे ते एक नॉर्मल इस फॉर्म च बी, ये जो एंगल वाले नो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अगर ए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, तो ए भी क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है टोटल आई। ध्यान नाल देखो ए वाली टर्म, अगर मैं पूरा ट्रायंगल बना दा इस फॉर्म इदा, ठीक है, ए एंगल ऑफ इंसिडेंस ते ए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ऑपोजिट एंगल ने, प्रॉपर्टी तुसी पढ़ी है। हुण देखो फिर तो सिमिलरली अगर ए एंगल ऑफ इमरजेंस है E, ते ए वाली रे ते नॉर्मल दे विच जेड़ा एंगल बनूगा ए भी की होएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस E होएगा। ये क्लियर हो रही है टर्म। फिर तो देखो ए आई ते ए एंगल ऑफ इमरजेंस E, ए आई ते ए भी E होएगा, क्योंकि जितना एंगल दी वैल्यू एदी होएगी, क्योंकि ए भी इंसिडेंट ते नॉर्मल दे विच बन रहा है, जे ए आई है तो ए भी आई होएगा। सिमिलरली ए की है, ए नॉर्मल ते रिफ्रैक्टिंग मतलब इमरजेंट रे दे विच जेड़ा एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इमरजेंस, ते ए भी की होगा एंगल ऑफ इमरजेंस। हुण देखो इत्थे सानू ए वाली वैल्यू दित्ती है R1, ए वाली वैल्यू कितनी दित्ती है R1, ते ए वाली वैल्यू कितनी दित्ती है R2, ते इन्नी टर्म दी वैल्यू कितनी आ जाएगी। हुण देखो ये साडे कोल है I, ये कितना है I, ए R1 ते कितना हो जाएगा I माइनस R1। क्लियर है, ये टोटल की है I ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ I माइनस R1। ਇਹ ਟੋਟਲ ਹੈ E, ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ E, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ R2 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ R2, E ਚੋਂ R2 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ E माइनस R2। क्लियर है, ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬੜੀ ਸਲੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੱਕੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਆਪਾਂ, इनू नाम दे देंगे PQRS, S है, ये S है। ठीक है, ये की है, ये है एक्सटीरियर एंगल। ध्यान नाल देखो ये है एक्सटीरियर एंगल डेल्टा, PSPR इन ट्रायंगल SPR, SPR ये दे विच। ठीक है, डेविएशन डेल्टा एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू ए की है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल I माइनस R1, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। एक क्लियर हो रही है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ਇਹਦਾ मतलब डेल्टा ਦੀ वैल्यू ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस ऑफ R1 प्लस R2। क्लियर है टर्म। ਹੁਣ देखो डेल्टा ਦੀ वैल्यू ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E ਤੇ R1 प्लस R2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म A। This is the relation between angle of prism, incident angle, emergent angle and deviation. This is called angle of deviation. फटाफट, deviation plus angle of prism,
डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू आई प्लस ई। डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू आई प्लस ई। ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਵਿੱਚ this and this ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ, ਮਤਲਬ a plus 90 plus 90 plus this angle equals to ਕਿਹਦੇ ਸੀਗਾ? 360 ਡਿਗਰੀ। ਅਗਰ ਇਹ 360 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗੀ? 180 ਡਿਗਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕਲੀਅਰ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। एंगल A 90 plus Q plus 90 that is equal to 360 डिग्री। ये दोनों सम 180 डिग्री मींस A plus Q के इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। हुन दूसरा देखो, उस तो बाद ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? PRQ ਇਹ ਵਾਲਾ ट्रायंगल लिया, PRQ this plus this इन्ना ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? 180 डिग्री। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ R1 plus R2 plus Q equal to 180 डिग्री। R1 plus R2 plus Q ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ A plus Q equal to 180 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਨੂੰ। ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ? R1 plus R2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ R1 plus R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮ ਆਫ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ exterior angle this and this sum of opposite interior angle I minus R1 E minus R2 delta is equal to I minus R1 plus E minus R2 delta is equal to I minus R1 plus E minus R2 sum of opposite interior angle। clear। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, I plus E is equal to minus R1 plus R2 R1 plus R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, that is angle of prism। ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? I plus E minus A। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ delta plus angle of prism is equal to I plus E। दिस इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, या फिर नु क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछ देते हैं, रिलेशन बिटवीन डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इमर्जेंट रे। हाँ जी, नेक्स्ट जेड़ा आपका करना है दैट इज फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड। किहड़े-किहड़े फैक्टर ते डेविएशन एंगल जेड़ा है वो डिपेंड करता है, ठीक है। सब तो पहले देखो, ये साडा प्रिज्म सी, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। ये होंदा एंगल ऑफ डेविएशन, दो रेस आपस में कट करके बिल्कुल स्ट्रेट, अगर ये साइड ना होंदी बिल्कुल सीधा जाती, अगर ये साइड ना होंदी बिल्कुल सीधा आंदी लगती। इन्हों का जो एक्सटीरियर बन रहा है इन्हों आप कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। सब तो पहले वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट का मतलब की है? ये देखो अलग अलग कलर की लाइट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हुण देखो रेड की वेवलेंथ सब तो ज़्यादा होंदी है, ठीक है। हुण ये देखो वेवलेंथ के उत्ते बड़ा डिपेंड करते हैं। ਹੁਣ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਗਏ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਗਿਓਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘੱਟ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾਊਗੀ ਰੇ, ਦੂਸਰੀ ਇਦਾਂ ਜਾਊਗੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਦੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਰੈਡ ਲਾਈਟ किसी अलग पोजीशन में सानू दिखूगा, अगर आप वायलेट भेजांगे तो वो किसी अलग एंगल नाल डेविएट करूगा। मतलब कि हर एक दी डेविएशन दी पावर अलग-अलग होंदी है। मींस फर्स्ट पॉइंट इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर। वेवलेंथ रेड कलर दी सब तो ज़्यादा होंदी है, वायलेट कलर दी सब तो घट होंदी है, ठीक है। फर्स्ट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। दूसरा की एंगल ऑफ इंसिडेंस। ਹੁਣ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਦੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ, 40 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ, 45 ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, 50 ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, 60 ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, 70 ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦੀ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਨੇਚਰ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 1.4 ਲੈ ਲਈਏ, ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ 1.41 ਲੈ ਲਈਏ, 1.42 ਲੈ ਲਈਏ, 1.49 ले लिए, 1.5 ले लिए, ये मतलब अलग-अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे अगर मटेरियल लईए, ठीक है, तो ਉਹਦੀ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਵਾਲੀ ਲੈਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ 60 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ।
क्लीयर। ਇਹ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, that is variation of angle of deviation with angle of incidence। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। हुण इनू समझने लिए सब तो पहले एक टर्म देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेल्टा, ये होगी आई। ठीक, मैं तो पहले ये एक्सपेरिमेंटली थोड़ा जिहा एक्सप्लेन करदा, ठीक है, ये थोड़ा जिहा समझ आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये नॉर्मल ते इधरों दी ये नॉर्मल, ठीक, ये तुहानू प्रैक्टिकल विच भी काम आऊगी ये चीज़ जिहड़ी मैं तुहानू एक्सप्लेन करन लगा। ठीक है, हुण देखो असी ना इधरों दी ये नॉर्मल है तो इधरों दी कोई इंसीडेंट रे भेजी, ठीक है, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री इस फॉर्म च। फॉर एग्जांपल आप इंसीडेंट रे भेजनी शुरू की, ਉਹਦੇ ਨਾਲ डेविएशन ਦੇ ਉੱਤੇ देखो की फर्क पै रहा, ठीक है, डेविएशन ਦੇ ਉੱਤੇ देखो की फर्क पै रहा। ਆਪਾਂ इंसीडेंट रे भेजी 25 डिग्री, ठीक, 25 डिग्री, डेविएशन की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। एक जनरल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दस रहे हैं, ठीक है, इन्नी डेविएशन आती नहीं है, चलो आप एक रफली वैल्यू ले रहे हैं, आ भी सकती है, ठीक है, 25 डिग्री से 70, 30 डिग्री तो फॉर एग्जांपल साढ़े को आ गई 65, ठीक, 35 ते आ गई 65 की जगह लिख दो 60 डिग्री, 35 ते आ गई 50 डिग्री, 40 ते आ गई 45 डिग्री, ठीक है, उस तो बाद फिर 45 डिग्री ते आ गई, फिर 51 डिग्री, फिर 50 डिग्री ते आ गई 56 डिग्री। एक चीज नोट करो कि इंसीडेंट रे दे इंक्रीज करने नाल पहले डेविएशन की वैल्यू की हो रही सी, डिक्रीज कर रही सी, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, ठीक है, उस तो बाद क्या होना शुरू हो गया कि यदि वैल्यू इंक्रीज करनी शुरू होगी। ये देखो, विथ इंक्रीज इन, ये प्रैक्टिकली तुसी करोगे इसी फॉर्म च ही होगी वैल्यू, प्रिज्म दे नाल जब तुसी एक्सपेरिमेंट करोगे तुहाडा जिहड़ा रिजल्ट आएगा ये रफली इसी फॉर्म च ही आंसर आएगा। हुण देखो, विथ इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, विद द इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करने नाल द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन firstly decreases and at any particular angle after any particular angle the value of angle of deviation increases। clear, with the increase in angle of incidence the increase करने दे नाल, ये देखो angle of incidence की वैल्यू बता रहे हैं 25 तो 30, 30 तो 35, 35 to 40। एंगल ऑफ इंसीडेंस दे इंक्रीज करन दे नाल जिहड़ी वैल्यू है एंगल ऑफ डेविएशन दी, डेल्टा दी वैल्यू, ठीक है, पहले की हो रही है, घट रही है, इस पॉइंट तक डिक्रीज कर रही है, ठीक है, इंक्रीज करन दे नाल इहदी वैल्यू डिक्रीज कर रही है।
फिर आफ्टर एट एनी पर्टिकुलर एंगल, आफ्टर एनी पर्टिकुलर एंगल, कुछ पर्टिकुलर एंगल आ गए एक साडे कोल, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेस। उस तो बाद जिहड़ी एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू है वो की कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, वो जो पर्टिकुलर एंगल होगा ना, एंड दैट पर्टिकुलर एंगल, एंड दैट पर्टिकुलर एंगल, दैट पर्टिकुलर एंगल बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इन्हों पर कहते हैं दैट पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इन्हों पर कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। हाँ जी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ते डेविएशन दे विच देखो, इत्थे तुसीं एवें करो, एंगल ऑफ डेविएशन कर दो तो इत्थे इंसिडेंस कर दो, इत्थे एंगल ऑफ डेविएशन ते इत्थे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, इस फॉर्म च ते ये वाली जी टर्म आएगी ये किवें दी हो जूगी, ये कुछ इस फॉर्म च बनेगी। ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, ये देखो इंसिडेंस की वैल्यू इंक्रीज करन दे नाल डेविएशन की वैल्यू देखो घटा रहे हैं, ये पहले वध सीगी फिर घटनी शुरू हो गई, होर घटनी शुरू हो गई। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से आके, एक पर्टिकुलर पॉइंट से आके उस तो बाद इसकी वैल्यू की होनी शुरू हो गई, इंक्रीज होनी शुरू हो गई। मीनस जिस पॉइंट तो इंक्रीज कर दिया, इस पॉइंट से जी वैल्यू आएगी इन्हों आप कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल्टा एम। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक, एंगल ऑफ डेविएशन ते एंगल ऑफ दे विच। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 25 सी, ठीक है 25 ते फिर उस तो बाद फिर इस फॉर्म 30, 35, 40, 40 इत्थे कर दो 40 डिग्री ते 45, ए टर्म दैट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्लियर? हाँ जी, यदि जी डेरिवेशन हैगी ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्होंने आप मतलब कि पूरी थॉरली करांगे तो उहदे नाल रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी ने जो कि तुहानू पेपर में पूछते होंगे हैं। ठीक है, ये टर्म तुहानू प्रैक्टिकल भी काफ़ी हेल्प करेगी। जब प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल भी तुहानू क्लास की होंदा है कि ये प्रिज्म दे देंगे तो उहदे नाल रिलेटेड एक ग्राफ प्लॉट करने वास्ते कहते गए। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इसी फॉर्म च ही बनते गए। बस तुसीं यही याद रखना है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू के ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ डेविएशन के उत्ते की फर्क पैंदा है। ठीक, ਉਹਦੀ वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ पहले की करेगी डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। ਜਿਹੜੀ मिनिमम वैल्यू होगी ना वो मिनिमम वैल्यू उस तो नीचे कोई वैल्यू ना जाए। ठीक है, उस पर्टिकुलर वैल्यू ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ i e ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ r1 r2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਿਨੀਮਮ डेविएशन ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ठीक है, ठीक है, जे तुहानू ये टॉपिक नाल रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी होएगी, ठीक है, तुसी व्हाट्सएप या ईमेल आईडी द्वारा पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक लिए धन्यवाद।